Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Globalization, and under this chapter, we are doing the question answers, and we have done up to question number 9, है ना? And now we will start question number 10. What is this question? The question is, do you agree with the argument that globalization leads to cultural heterogeneity? We have discussed the cultural consequences of globalization, and in that discussion we have seen that globalization is responsible for cultural homogenization, which means that the culture of the whole world, has become homogeneous. The distinct and the unique elements of different cultures are not present in this world culture. The culture which is homogeneous, which is the result of the process of globalization, is actually westernization of the culture. The whole world is turning western in respect of culture, and this is what we call cultural homogenization. But in this regard, we must remember that this homogeneity is not something which we can call world culture. World culture means when there is a distinct and unique element of the various culture of world is present in a single culture, then we can call it world culture or global culture. But it's not global culture. What is happening? Actually, it's cultural homogenization. But in this regard, we must remember that on the one hand, we are saying that this globalization is leading to cultural homogenization, but on the other hand, what we find that this globalization leads to cultural heterogeneity also. Why this heterogeneity? कहाँ से ये heterogeneous आ रहा है? अभी तक हमने कहा कि homogeneous बनाता है, but at the end we start to say कि ये heterogeneous भी बनाता है. So in this regard, what our argument will be that culture is not something which is static. It is a dynamic concept. It keeps changing. It's not that culture remains the same for all the time. There is outside influence. Outside influence will be there on the culture of any country. But what is important, what we need to understand, that this influence from outside becomes negative when, because of this influence, our choices are reduced. If that outside influence is not reducing our choices, then we can't say that it's a negative impact. If it is widening our choices, if it is enlarging our choices, or it is modifying our culture without changing the traditional elements, then we can say it's not negative. And in that sense, it brings cultural heterogeneity. ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये कल्चरल हेट्रोजेनिटी को लाता है, बिकॉज एक जगह की कल्चर जो थी उस पर आउटसाइड का इम्पैक्ट हुआ, बाहरी कल्चर का इम्पैक्ट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट द पीपल आर गेटिंग मोर चॉइसेस एंड पीपल आर the culture of that place is modified, and the traditional elements are also still there. In spite of getting modified,
the traditional elements are still there. An example we can give, two examples we can give कि कैसे आउटसाइड का जब इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उस इम्पैक्ट से हमारे चॉइसेस बढ़ रहे हैं. जैसे कि हमने देखा था कि इफ वी गो टू एनी रेस्टोरेंट नाउ वी गेट सो मेनी ऑप्शंस, है ना, बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं कि हम क्या खाएं. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है, कल्चर में हमारे ग्लोबलाइजेशन आ गया, बहुत सारे नए एलिमेंट्स आ गए, हमारे सामने ऑप्शंस बहुत बढ़ गए, ऑप्शंस हमारे बढ़ गए, चॉइसेस हमारे बढ़ गए. एंड if someone wants to eat masala dosa, then he or she will eat masala dosa only. Burger cannot substitute a masala dosa. तो इसमें हमारे चॉइस बढ़े हैं, इसने हमारी चॉइस को खत्म नहीं किया कि अब हम मसाला डोसा खाते ही नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. स्टिल पीपल प्रेफर टू ईट मसाला डोसा देन दैट बर्गर और पिज्ज़ा और एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड. तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं कि हमारी चॉइस बढ़ गए. अब हमारे सामने अगर हमें मन करेगा तो हम मसाला डोसा खाएंगे, और अगर हमारा मन करेगा तो हम बर्गर भी खा सकते हैं. हमारी चॉइस बढ़ गए. पहले एक ही चीज होती थी. ग्लोबलाइजेशन के पहले के अगर समय को हम वी हैव एक्सपीरियंस्ड, हम यू आर younger people, you have not experienced all these things, but we have experienced in front of our eyes everything happened. हमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है. जब 91 के पहले की जो लाइफ थी और 91 के बाद की जो लाइफ है, दैट इज टोटली डिफरेंट. 91 के पहले अगर हम उस समय को याद करते हैं तो हमारे सामने चॉइसेस नहीं हुआ करती थी. जो कंज्यूमर था ना, उसके सामने कोई भी चॉइस नहीं होती थी हर चीज में. नॉट इन अभी हम कल्चर में, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. The example is not from cultural side, the example is from that economic side हम कहेंगे. जब अगर हम 91 के पहले के टाइम को देखें तो उस समय वी कहने का मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली थी उसकी बात हम कर रहे हैं कि पीपल नेवर यूज्ड द टर्म डिटर्जेंट पाउडर. अगर उनको डिटर्जेंट चाहिए होता था तो दे यूज्ड टू से सर्फ चाहिए, सर्फ लाना है. मार्केट से लाने की लिस्ट जब सामान बनती थी तो उसमें सर्फ लिखा जाता था, डिटर्जेंट नहीं लिखा जाता था. वी वर नॉट अवेयर, बीइंग अ स्मॉल, या काफ़ी छोटे होने के कारण भी हो सकता है ये, या फिर बड़े लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि जो जिसको हम मंगा रहे हैं, जो सर्फ हमारे घर में आ रहा है, एक्चुअली दैट इज नॉट सर्फ, दैट इज detergent powder, and surf is just the name of that detergent, the name of the brand. हम सर्फ ही समझते थे कि सर्फ ही होता है जिससे कि कपड़े धुलते हैं. सर्फ के अलावे और भी कुछ चीजें थी, बट सर्फ जो था उसका जो मोनोपोली था वो बहुत ज्यादा था पूरी इंडियन मार्केट पे. तो ये है बिफोर ग्लोबलाइजेशन, जब हमारे सामने चॉइस नहीं होते थे. हमारे सामने बस एक ही चीज था कि हम डिटर्जेंट अगर चाहिए तो हम सर्फ ही लेते थे. इसी तरह से हर प्राइस रेंज में जो थोड़े लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास हैं वो निर्मा लेते हैं, हिपोलिन लेते थे. इस तरह से 2 ही 3 ब्रांड्स थे जो कि काम करते थे, और था ही नहीं, हमारे सामने चॉइस ही नहीं होते थे. तो हमने उस डिटर्जेंट पाउडर और सर्फ को हमारे लिए क्या बन गया? सिनोनिम्स बन गए. और अगर हम 91 के बाद की कंडीशन को देखते हैं तो क्या हमारे सामने चॉइसेस ही चॉइसेस हैं. अगर हम डिटर्जेंट लेने जाते हैं तो इतने वैरायटी में मिलते हैं कि वी गेट कंफ्यूज्ड कि कौन सा ले. तो ये है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट. इसी तरह से अगर कल्चर में भी हम देखें तो यही चीज हुआ कि पहले हमारे चॉइसेस लिमिटेड थे. अगर हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जो चीज़ें हमें मिलती थी खाने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड. नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, मोर देन दैट नथिंग वाज अवेलेबल. बट अब हमारे सामने जब हम जाते हैं तो हमारे सामने वैरायटी ऑफ आइटम्स होते हैं जिसमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं. चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, तरह तरह के तमाम आइटम्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती है.
तो ये क्या है, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। और ये जो कल्चर में हमारे जो इम्पैक्ट आ रहा है, आउटर एलिमेंट जो इम्पैक्ट डाल रहा है, इसको हम पूरी तरह से निगेटिव नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे चॉइस को बढ़ा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या देखते हैं, एक और एग्जांपल हमने दिया था कि कैसे जीन्स, ब्लू जीन्स जो कि अमेरिकन कल्चर को डिपिक्ट करता है, अमेरिकन कल्चर का जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आज के डेट में हम उस ब्लू जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता पहनते हैं। इंडिया में भी काफ़ी ट्रेंड बहुत दिनों से है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई न्यू ट्रेंड है और ये ख़त्म हो गया। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा फैशन में रहती है। और ये चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये अमेरिका में भी इस तरह की चीज़ें लोग पहनते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, दे यूज टू वेयर इन दैट कंट्री ऑल्सो। तो ये क्या है, दिस इज कि हमने अपने ट्रेडिशनल एलिमेंट को भी जिंदा रखा है और उसके साथ एक आउटर कल्चर का, एक बाहरी कल्चर के एलिमेंट को भी हमने मिला लिया है। तो दिस इज पॉजिटिव, है ना। और इस कारण से हम कहते हैं कि जो कल्चर है वो हेट्रोजेनस हो गया है। ऐसा कहना कि ये पूरा का पूरा नेगेटिव है कल्चरल इम्पैक्ट, ये गलत होगा। कल्चरल इम्पैक्ट पॉजिटिव भी, और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हेट्रोजेनस हो गया। मतलब हेट्रोजेनस मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का होना। एक ही कल्चर है, इंडिया की कल्चर आज के डेट में जो है कल्चर, वो हेट्रोजेनस है, बिकॉज उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ गए हैं। कुछ पुराने एलिमेंट्स भी हैं, कुछ न्यू एलिमेंट्स जो कि बाहर से आए हैं दूसरे कल्चर से, जिसको हमने अडॉप्ट किया है, वो भी हमारे में मिल गए हैं। और इस तरह से कल्चर जो है वो हेट्रोजेनस हो गया है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो इसमें जो हमारा मेन पॉइंट होगा वो उसको अभी मैं लिख रही हूँ। आई विल बी राइटिंग डाउन ओनली द मेन पॉइंट्स। ओके, सो आंसर 10, first point, globalization leads to cultural homogenization, under which we find westernization Okay, globalization leads to cultural homogenization, under which we find westernization of culture. But at the same time, we can say that culture is not something culture is not something static, but it keeps changing. It bound to be affected, it bound to be affected by outside cultural influences. When these outside influences
when these outside influence when these outside influences so it bound to be affected by outside cultural influence when these outside influences reduce our we will continue ठीक है when these outside influences reduce our continued ठीक है पॉइंट 3 कंटिन्यू हो रहा है रिड्यूस आर choices then it becomes negative है ना but when it enlarge our choices and modify our culture without changing the traditional element it is but when it enlarge our choices and modify our culture without changing the traditional element then it is positive तब हम इसको positive कहेंगे then it is positive and then it leads to heterogeneity ऑफ कल्चर ठीक है जब पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है बाहरी कल्चर का तो वो हमारे ऑप्शंस को बढ़ाता है हमारे ट्रेडिशनल एलिमेंट को रखते हुए हमारे कल्चर को मॉडिफाई करता है और तब हम उसको कहते हैं हेट्रोजेनिटी ऑफ कल्चर इसमें you can give the example of that masala dosa and burger and the combination of jeans with khadi kurta ठीक है तो ये हमारा आंसर हो गया इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि होमोजेनस जब हो रहा है ना तो हमारा कल्चर क्या हो जा रहा है होमोजेनस हो रहा है तो हमारी जो चॉइसेस हैं वो कम हो जा रहे हैं और जब हेट्रोजेनस हो रहा है तो हमारे चॉइसेस बढ़ जा रहे हैं और इसलिए जब चॉइस कम हो रहा है तो वो नेगेटिव हो गया है ना और जब चॉइस बढ़ जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो गया जब चॉइस कम हो रहा है तो वो होमोजेनस है जब चॉइस बढ़ जा रहा है तो हेट्रोजेनस हो गया हेट्रोजेनस डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो कल्चर में एक साथ चल रहे हैं वही होता है ना हेट्रोजेनस तो इस तरह से अगर लॉजिकल वे में हम समझेंगे तो
चीज़ें समझ में आ जाएंगी, देन यू डोंट नीड टू मेमोराइज। याद करना बहुत आसान हो जाएगा, रोट लर्निंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड एंड ऑन इंडिया एंड हाउ इन इंडिया, हाउ इज इंडिया इन टर्न इम्पैक्टिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन? मतलब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हुआ और इंडिया कैसे ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के इम्पैक्ट को हमें देखना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुए हैं बहुत सारे, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ट्रेड की जो वॉल्यूम थी वो बहुत बढ़ गई है, बहुत सारा ट्रेड हो रहा है हमारे कंट्री में। देन हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज थे, जो कि पहले सिर्फ इंडियन कंपनी थे, आज वो एमएनसीज बन चुके हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे रैनबैक्सी है, टाटा मोटर्स है, ये सभी जो हैं वो क्या बन गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बन गए हैं। इसके अलावा हमारे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है ना, और जिसके कारण हमारा इन्वेस्टमेंट के कारण ही तो ग्रोथ आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी जोड़ सकते हैं तो हमें जोड़ना होगा कि जो फायदा हो रहा है, जो बेनिफिशियल ग्रुप है, द ग्रुप विच इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस ग्लोबलाइजेशन इज द मिडिल क्लास। द पुअर क्लास इज स्टिल नॉट getting any benefit from the process of globalization. In fact, we can say that they are adversely affected by this globalization. अगर हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे सामने ऑप्शंस बढ़ गए, तो ये ऑप्शंस जो बढ़े हैं वो किसके लिए बढ़े हैं, वो मिडिल क्लास के लिए बढ़े। जो बेसिक नीड्स जहाँ जहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इनफैक्ट इट इज हार्मिंग। ये स्टेट को रोक रहा है वेलफेयर एक्टिविटीज करने से, है ना। तो इस कारण से हम इसको कहेंगे कि मिला जुला इम्पैक्ट इसका कहा जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि इंडिया कैसे ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहा, हाउ इंडिया इज इम्पैक्टिंग ग्लोबलाइजेशन। सो इन आंसर टू दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट देयर वाज फाइनेंशियल क्राइसिस इन इंडिया 1980s में। हमारा जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ही कम हो चुका था, इकोनॉमी काफ़ी स्लो जा रही थी, और वैसे में हमने ये रिस्पॉन्ड किया कि वी नीड टू चेंज the complete economy, and a new economic policy was adopted by the then government, and this economic policy has three main elements: privatization, globalization and liberalization, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लिबरलाइज्ड किया गया फ्रॉम 1991, और इसका मेन एम था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को अट्रैक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए कंट्री के अंदर, है ना। उसके बाद हमने ट्रेड पॉलिसी को भी रिफॉर्म किया। ट्रेड पॉलिसी में जो बैरियर्स थे, जो टैरिफ्स लगते थे इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट्स पे, उसको रिमूव कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिया गया, ताकि सामान का आना जाना जो है वो आराम से हो सके, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, बैरियर नहीं आना चाहिए। एंड इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज वगैरह में लाइसेंसिंग की और परमिट का सिस्टम हुआ करता था, जो कि आई टोल्ड यू प्रोटेक्शनिज्म को हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया था आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द न्यूली इमर्ज्ड इंडस्ट्रीज। But this policy of protectionism proved fatal because it curtailed any kind of competition. And in the absence of competition, what happened? The quality of the goods which was produced was started to be reduced, है ना। क्वालिटी खराब हो गई, कॉस्ट बढ़ गया, बिकॉज कंपटीशन वाज नॉट देयर। तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया 91 में, उसमें ये लाइसेंसिंग और परमिट सारे सिस्टम्स को हटा दिया गया, और इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का मौका मिला। और इसी तरह से बैंकिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में पूरा एक्सपैंड कर दिया गया।
प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरी तरह से ओपन कर दिया गया, जो कि पहले नहीं था। तो इस तरह से इंडिया ने ओपन इकोनॉमी की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जो इकोनॉमी को क्लोज करके जो रखा जा रहा था, जो सोशलिज्म का इम्पैक्ट था इंडिया की इकोनॉमी पे, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया बाय दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। ओके, तो ये हमारा ये पूरा आंसर हो जाता है। ठीक है, दिस इज आवर आंसर 11। ठीक है, सो impact of globalization on India. First impact is high growth rate of economy. Second is increased job opportunity. Third is increased volume of trade, international trade. Increased volume of international trade. And then fourth is increase in foreign direct इन्वेस्टमेंट। दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट, है ना। और इसी के साथ साथ एक इम्पैक्ट हम लिखेंगे कि द मिडिल क्लास is getting benefit, but the poor class is not in the condition of getting बेनिफिट। ठीक है, ये हो गया हमारा कि इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, और अब जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि इंडिया ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट किया, हाउ इंडिया हैज इम्पैक्टेड ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो अब उस पार्ट का हम लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, impact India in turn impacting
India in turn impacting. In 1991, India adopted new economic policy which focused on globalization, privatization, and liberalization. Okay. So, in 1991, India adopted new economic policy which focused on globalization, privatization, and liberalization. The second point, a new trade policy was adopted which removed tariffs and restrictions on trade. So, this trade policy, new trade policy which removed tariffs and restrictions on trade. And the third point is that banking operation by private sector were permitted. Banking operation by private sector were permitted to expand in the country. है ना, ये चीज़ें हुई कि अब बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्राइवेट में भी परमिट हो गई. अब उसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट बचता है कि इंडिया हैज़ in order to attract the foreign investment, the rules were become liberal. Okay, बस ये लास्ट पॉइंट है. In order to attract foreign capital, the rules
regarding FDI. You don't need to write the short form. क्या होगा FDI? Foreign direct investment. In order to attract foreign capital, the rules regarding FDI were liberalized. उसको लिबरल बना दिया गया है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिया किस तरह से ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट कर रही है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will be starting a new chapter and that is the second book. We have completed first book. फर्स्ट बुक हो गया, अब सेकेंड बुक को हम लोग स्टार्ट करेंगे कल के क्लास में। ओके